the Bohr's model of an atom was not accepted or why it failed. जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है और रोटेट और रिवॉल्व तो कर रहा है, पर इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो जैसा मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं, क्लियर? लेकिन पाथ का पता लगाया जा सकता है, क्लियर? और पाथ का पता कैसे लगाया जा सकता है? अगर इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबल जगह में है तो आप उसकी वेलोसिटी और आप उसका मोमेंटम दोनों गैदर कर सकते हो। बट इफ दे आर नॉट फिक्स्ड, इफ देयर पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फेल है। कैसे फेल है? बिकॉज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेज दैट ईदर you can measure the momentum or either you can measure the velocity, I mean the position. अगर एक को मेजर करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? लेस एक्यूरेट हो जाएगा। और इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, बदल रही है बार बार। It is moving from ground state to excited state and then again from excited state to ground state. Because of all these shortcomings, the new model of an atom came into light, and that was known as quantum mechanical model of an atom. And on the basis of this, जैसे मैंने आपको बताया कि new branch of science which studies about the dual nature of matter, which studies about the dual nature of matter, and which tells us about the dual nature of matter. That is what you commonly call as quantum mechanical model of an atom. अब इसमें सबसे पहले we will be studying about Schrödinger wave equation. हिंदी में श्रोडिंजर तरंग समीकरण, क्लियर? श्रोडिंजर तरंग समीकरण। We will be studying about Schrödinger wave equation. इसको समझने के लिए quantum mechanics was developed by Erwin Schrödinger. It was developed by Erwin Schrödinger, and it is based on this fact about the wave motion associated with the particles. मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि पार्टिकल फोटॉन है तो it can go wave motion also and it can go particle motion also. It can behave as wave as well as a particle. तो उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को स्क्रोडिंजर ने 3 डायमेंशनली डिफाइन किया। स्क्रोडिंजर ही सेड कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में अगर गोल गोल रोटेट कर रहा है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका 11th और 12th दोनों में काम की चीज है, अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल रोटेट कर रहा है तो वो 3 डायमेंशनली रोटेट कर रहा है। 3 डायमेंशनली रोटेट कर रहा है तो उसके बेसिस पे एक इक्वेशन आया which is known as Schrödinger wave equation. और Schrödinger wave equation आपको बताता क्या है? जैसा मैंने आपको बताया था, एक्चुअली देखा जाए तो Schrödinger wave equation जो है it is considered as the heart of quantum mechanics. Quantum mechanics का दिल माना जाता है, it is considered as the heart of quantum mechanics. तो आइए Schrödinger wave equation देखते हैं। d square psi upon dx square plus d square psi upon dy square plus d square psi upon dz square, और इसके साथ साथ 8 pi square, याद रखेंगे इसको, m upon h square, क्लियर? e minus v psi is equal to 0. This is considered as Schrödinger wave equation. Schrödinger ने क्या बताया? जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है, तो it has 3 dimensions. And what are these 3 dimensions? 3 space coordinates x, y and z. So these are the 3 space coordinates of the electron, 3 dimensionally, that is x, y and z. Clear? And what is this psi? As I told you, this psi is the amplitude. What is the psi? This psi is the amplitude of the wave. And there are 3 space coordinates. And what are these 3 space coordinates?
x, y and z. What is E here? ये E जो है total energy of the electron है. This E is total energy of electron. And what is this V? This V is potential difference. What is this V? It is the potential difference. है ना? Clear? जैसा मैंने आपको बताया. And what is this M? This M is the mass of electron. इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये इलेक्ट्रॉन का विभव. Clear? ये this is what you commonly call as Schrodinger wave equation. Clear? अब मैं आपको इस बारे में और एक पॉइंट बताऊं. We have one more factor, that is what you commonly call as psi square. And what is this psi square? This psi square, it is the intensity of the electron wave. Clear? But psi square is what? Actually, psi square structure of atom में बोलते हैं probability. हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता. Probability of finding an electron. What it is called as probability of finding an electron at a particular point. Particular point मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसके आसपास का वो परिक्षेत्र जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना अधिक होती है, that is known as electron cloud. What it is called as? हाँ, हिंदी में इलेक्ट्रॉन मेघ बोलते हैं इसको. तो it is called as electron cloud. अब probability क्या होती है मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ. ठीक है, मान लीजिए कि मैं खुशबू के घर गया, घर से निकला, कहाँ जाना है मुझको? खुशबू के घर जाना है. ठीक. अब खुशबू के घर के लिए मैं निकला हूं तो दो चांसेस हैं. खुशबू मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती. हो सकता है मम्मी ने बाजार भेजा हो सब्जी लाने के लिए, या हो सकता है पेंट्री में रास्ते में किराना दुकान पड़ा हो, वहां राशन लेने जा सकती है. क्लियर है ना? राइट? क्लियर? तो कोई भी चांसेस होते हैं. What I'm saying is probability, अगर खुशबू के घर में जा रहा हूं तो खुशबू के मिलने के चांसेस 99% है. बट 1% ये भी है कि हो सकता है खुशबू घर में ना. तो that is what you call as probability. Clear? Right? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है, if you can see the region of space around the nucleus, ध्यान से समझिए, the region of space, न्यूक्लियस के आसपास का वो परिक्षेत्र जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड. क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन क्लाउड. और प्रोबेबिलिटी ये दर्शाती है कि अगर भैया इस शेल का इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लोकेशन में मिलेगा ही मिलेगा. भाई ऑब्वियसली अगर मेरे को खुशबू के घर जाना है तो मैं उसका एड्रेस निकालूंगा और उस एरिया में जाऊंगा. ऐसा तो नहीं कि खुशबू पंडरी में रहती है और मैं रामसागर पारा में खोजने निकलूंगा. मिलेगी क्या? नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं. तो दैट इज व्हाट यू कॉमनली कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी, एंड दिस इज व्हाट यू कॉमनली कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इज दिस क्लियर? एक चीज और, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं और इसमें 90% लोग फेल हो जाते हैं. People always get confused about subshells and atomic orbitals. अधिकतर लोग तो सबशेल और एटॉमिक ऑर्बिटल को सेम समझते हैं, but there is a difference. And what type of difference particularly as I am talking about is, before that मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि as I told you about atomic orbital. Clear? अच्छा, एक और चीज, लार्ज डिस्टेंस में न्यूक्लियस से, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का बढ़ता जाएगा, क्लियर, तो क्या होगा? स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ गिवन एनर्जी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है. क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया था. बट मैं आपको एक और चीज बता दूं कि
व्हाट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड? इलेक्ट्रॉन किसको, क्लाउड किसको बोलते हैं? इट इज दैट रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी, एक इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, इट इज अप टू 90%। ये चीज याद रखें। और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? मेरी तरफ देखिए सब लोग, व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल? द थ्री डायमेंशनल स्पेस दैट इज एक्स, वाई एंड जेड। न्यूक्लियस के आसपास वो त्रि-आयामी संरचना या त्रि-आयामी स्पेस, आयाम, the three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum or up to 90%. तो that is atomic orbital। फिर से बोल रहा हूँ, सुनिए, atomic orbital क्या है? It's a three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding an electron is up to 90%. Is up to 90%. और I should say the maximum। अब मैं आपको यहाँ पे एक मोटे-मोटे तौर पर कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। I hope आप लोग इसको समझ गए होंगे, और मैं जो समझा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। मैं आपको बड़ा सिंपल सा चीज बता रहा हूँ। I hope if you can understand। मैं पूरा डायग्राम ही आपके लिए बना देता हूँ एक बार और आप उसको समझने की कोशिश करिए। Suppose if you can see here, K L M N O P भी बना सकते हैं आप, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। We will have a difference between orbit and orbital। Let us see the difference between orbit and orbit। We have the electrons। Am I clear? Right? n की वैल्यू भी देते हैं, यहाँ n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू 2, n is equal to 3 and here n is equal to 4। अब ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट देख लीजिए, ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। वो रास्ता है ऑर्बिट, वो पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गोल गोल क्या करता है? रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है। तो दैट इज व्हाट यू कॉल एज ऑर्बिट, जिसके गोल गोल इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है। बट व्हाट इज एन ऑर्बिटल? एन ऑर्बिटल इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। व्हाट एन ऑर्बिटल इज? इट्स अ थ्री डायमेंशनल स्पेस, जैसे मैंने आपको बताया। और वो थ्री डायमेंशनल स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अप टू 90%। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एंड दैट इज अप टू 90%। एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, कि ऑर्बिट इज द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑर्बिट। क्लियर? मतलब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन थ्री डायमेंशनली रोटेट नहीं कर रहा है, प्लेनर मोशन, एक विमी गति जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? वन डायमेंशनली प्लेनर मोशन, एक ही प्लेन में रोटेट कर रहा है। क्लियर? लेकिन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने डायमेंशन में रोटेट करता है? तो इसमें वन डायमेंशन में रोटेट कर रहा है और इसमें कितना रोटेट कर रहा है? थ्री डायमेंशन। सो द इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन थ्री डायमेंशन। Is this clear? Right? Another thing is, सारे ऑर्बिट्स का शेप एक जैसा है। आप देख सकते हैं KLMN किसी का शेप अलग है क्या? सब कौन से शेप में है? सर्क्यूलर। तो all the orbits they are circular in shape। All the orbits they are circular in shape। लेकिन ऑर्बिटल्स के शेप अलग अलग होते हैं। और कौन कौन सा शेप पढ़े हम लोग? S ऑर्बिटल अगर है तो सिमेट्रिकल है, मतलब स्फेरिकल है, ठीक है। तो s ऑर्बिटल के बारे में मैंने आपको बताया कि स्फेरिकली s ऑर्बिटल दे आर सिमेट्रिकल, तो s ऑर्बिटल दे आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल। Am I clear? Right? s ऑर्बिटल दे आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल। पर p, d और f ऑर्बिटल का अगर आप शेप देखोगे तो क्या है? p, d, f का अगर आप शेप देखोगे तो व्हाट इट इज? डंबल शेप। तो PDF
they are dumbbell shape, s orbital is symmetrical मतलब गोलाकार है s orbital, और pdf क्या है, डम्बल शेप। क्लियर? देखिए एक और चीज, ऑर्बिट्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ऑर्बिट्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो एक ये पॉइंट आ रहा है कि ऑर्बिट्स दे हैव नो डायरेक्शन, ऑर्बिट्स दे हैव नो डायरेक्शन। क्लियर? राइट? और s ऑर्बिटल को छोड़ दो तो p, d और f ऑर्बिटल्स जो हैं उनका अपना डायरेक्शन होता है। क्यों s ऑर्बिटल? क्यों? बिकॉज ये भी स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, गोलाकार है, पर बाकी के ऑर्बिटल्स का डायमेंशन होता है। एक और चीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला है 2n², and this 2n² formula is known as Bohr-Bury scheme. Is this clear? This formula is known as Bohr-Bury scheme or commonly called as 2n²। और n क्या है? नंबर ऑफ द प्रिंसिपल शेल्स। अगर मैं n में 1 डालूंगा तो कितना आ गया? 2, मतलब ये क्या है? k शेल। अगर n में मैं 2 डालूंगा तो कितना आ गया? 8 l शेल। अगर मैं n की वैल्यू 3 डालूंगा तो कितना आ गया? 16। हाँ, ठीक है, तो k l m। अगर मैं n की वैल्यू 4 डालूंगा तो कितना आ गया? 32। तो केमिस्ट्री में बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी को मैजिक नंबर्स बोलते हैं। 2, 8, 18, 32। पूरा पीरियोडिक टेबल भी इसी बेसिस पे है। अगर आप फर्स्ट पीरियड में देखोगे तो 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम। सेकंड और थर्ड पीरियड में देखोगे तो 8, 8 है। फोर्थ और फिफ्थ में देखोगे तो 18, 18 है। सिक्स्थ और सेवंथ में देखोगे तो इनको मिला लोगे तो 32, 32 है। तो इसीलिए ये पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेल्स एंड सबशेल्स के बेसिस पे। दैट इज व्हाई दीज नंबर्स, कौन कौन सा, 2, 8, 18 एंड 32, केमिस्ट्री में हम इनको जादुई संख्या या मैजिक नंबर्स बोलते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज मैजिक नंबर्स, क्योंकि इसी बेसिस पे हमने पीरियोडिक टेबल का पूरा, अगर आप देखोगे, 4 ब्लॉक्स, और हमने अलग अलग पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग या एलिमेंट्स की फीलिंग की। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि किसी भी शेल में, अभी एक चीज देखिए, के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप कितना दे सकते हो? 2। एल शेल में मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एम शेल में आप कितना दे सकते हो? 18। और एल शेल में मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 32। Is this clear? And that is what you call as Bohr-Bury scheme. ये तो किस में था कि ऑर्बिट में हम 2n² के फॉर्मूले के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। In orbits, what we do is distribution of electron on the basis of 2n². But in orbitals, we follow what? We follow Pauli's exclusion principle. Pauli के अपवर्जन का सिद्धांत। We follow Pauli's exclusion principle. And what does it says? What does it says? Look at here. What does it says? It says कि any particular subshell or orbital can have electrons but of opposite spins. One is clockwise and another one is anti-clockwise. तो आप एक सबशेल या एक ऑर्बिटल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हो? मैक्सिमम 2, but they should have opposite spins. One clockwise and another one as anti-clockwise. ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे जो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वांटम नंबर के साथ खींचूंगा।